یہ چیک کریں ماشاءاللہ، چیک کریں یہ کتنا مزیدار پیزا بنا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی لیئر بھی ہے، ہلکا سا کرسپی بھی ہے اور نرم نرم بھی ہے ڈو۔ چیک کریں یہ اس کی لیئر چیک کریں۔ السلام علیکم دوستو۔ اچھا، آج آپ کے ساتھ پیزا کی مکمل ریسپی جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے جو باہر ہوٹلوں میں یا کمرشل پیزا جو ہوتا ہے نا، آپ ریسپی کس طرح سے بنائیں گے۔ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی بنا سکتے ہیں۔ جو کوک حضرات یہ ریسپی چیک کریں، آزمائیں۔ اچھا، پراپر آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے۔ اس میں کوئی ایسی دو نمبری نہیں ہوگی کہ ویڈیو کاٹ کاٹ کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں، تو پھر بعد میں گھر میں جب بناتا ہے یا کوئی ہوٹل میں ٹرائی کرتا ہے تو وہ چیز بنتی نہیں ہے۔ تو یہ جو ریسپی ہے پراپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سب چیزیں بتائیں گے کہ آپ نے پیزا سب سے پہلے ڈو کیسے بنانی ہے، پھر اس کے لیے آپ کو چکن بنانا سکھائیں گے کہ چکن ٹکا کیسے بنتا ہے، پھر اس کے بعد ڈو میں ٹاپنگ کریں گے، پیزے کی پراپر ٹاپنگ کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے پیزا اینڈ میں تیار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو ڈو کے بنانے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، یہ چیک کر لیں، ویسے تو 1 کلو ڈو میں 300 گرام پانی ڈلتا ہے، تو میں جو بنا رہا ہوں 3 کلو کی ریسپی ہے۔ آپ نے پھر اپنے حساب سے کر لینا جو بھی حساب کتاب ہوگا۔ سب سے پہلے پانی لے لیا ہے، یہ ہلکا سا نیم گرم پانی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایسٹ 30 گرام۔ ایسٹ ہم نے 30 گرام ڈالنی ہے، یہ چیک کر لیں۔ اس کمپنی کی ایسٹ ہے، یہ 30 گرام ڈالنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں مل جاتے ہیں، ہمارے پاس ہم بڑا ڈبہ منگاتے ہیں، ہمارا کام زیادہ ہے، یہ ہم نے ڈبے میں رکھی ہوئی ہے۔ ویسے 30 گرام ڈالنی ہے، لیکن آپ کے لیے اگر ویٹ مشین کسی کے پاس نہیں ہوتا اسکیل وغیرہ تو آپ چمچ کے ساتھ اندازہ لگا لیں۔ 1 چمچ، یہ تقریباً جو ہے نا 4 چمچ آپ کے جو عام رائس سپون ہے نا یہ والے ڈلیں گے، ٹی سپون نہیں ہے، رائس سپون ہے، یہ 4 چمچ ڈلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنی ہے شوگر کے 2 چمچ۔ شوگر آپ لے لیں گے 2 چمچ، چینی کے آپ نے ڈال دینے ہیں، اس سے بھی بہت اچھا جو فلیور آتا ہے۔ چیک کریں آپ کو دو تیار ہو جاتی ہے ہماری۔ 2 چمچ لے لیے اس میں شوگر کے، آپ اس کو ہم مکس کریں گے، اسی چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اس کو۔ یہ چیک کر لیں۔ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے جو ہے نا رکھ دینا ہے تاکہ یہ پراپر اپنا پھول جائے۔ اس میں اب 3 کلو ہم میدا لیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 کلو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو 3 کلو میدا آپ اس میں ڈالیں گے۔ جو ہمارے پاس میدا یہ عسکری والوں کا میدا ہے، اس کا بہت اچھا پیزا بنتا ہے، آپ نے ٹرائی کرنا ہے۔ کوئی اور میدا استعمال نہیں کرنا، جو عسکری کا میدا ہے نا اس سے اچھا پیزا بنتا ہے۔ یا آپ مارٹن کا میدا لے سکتے ہیں یا عسکری کا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور میدا جو ہے نا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ بلکہ ڈبے ذرا کھول گیا، چل 0 کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے اکا پاؤڈر۔ اکا پاؤڈر کا آپ کو پیکٹ بھی چیک کروا دیتا ہوں، یہ ہے اکا 300، یہ آپ نے کیمیکل بھی اسپریڈ یہ آپ نے باہر سے لے لینا ہے، یہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے 30 گرام میں ڈالنا ہے، اور چمچ کے ساتھ سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں، 1 چمچ میں 8 گرام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے 30 گرام ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے 60 گرام۔ 1 کلو میں 20 گرام نمک ڈالتا ہے، یہ پراپر ریسپی ہوتی ہے۔ آپ نے 60 گرام نمک ڈالنا ہے، یہ تقریباً 5 چمچ ہیں۔ اچھا، نمک بھی ایڈ کر دیا، اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے۔
ऑयल भी 300 ग्राम ही 1 किलो 3 किलो में डालना है, और 1 किलो में 100 ग्राम ऑयल होता है। ये चेक करें, 300 ग्राम हम इसमें ऑयल डालेंगे। कोई सा भी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, ये प्रॉपर रेसिपी होगी। ना तो आपने 300 ग्राम से ज़्यादा डालना है और ना ही कम डालना है, वरना आपकी पिज़्ज़ा डो जो है ना वो सही नहीं बनेगी। ये 300 ग्राम इसमें ऑयल। अच्छा, सब चीज़ें इसकी अब पूरी हो गई हैं। अच्छा जी, सब चीज़ें अब डो में हमने प्रॉपर डाल दी हैं। अब आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। हमारे पास तो डो मशीन है, डो मिक्सर जिसको बोलते हैं, उससे हम बनाएंगे। तो आप इसको हाथ के साथ भी गूंथ सकते हैं। और नरम होनी चाहिए ये डो, आपकी सख्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ बराबर तरीके के साथ। ये हमारे पास मशीन है, इसमें हम आटा डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेना है। जो आपने इसमें ऑयल डाला है, इक्का पाउडर और नमक, ये चीज़ें आपने डो में डालनी है, पानी में मिक्स नहीं करनी। ये इस चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। ये कोई सेक्रेट रेसिपी होती हैं जो हर कोई नहीं बताता। पानी में आपने सिर्फ ईस्ट, जो जिसको खमीर बोलते हैं, वही ऐड करना है, और शुगर, दो चीज़ें। अब मैं ये जो ईस्ट है ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा करके इसको जो है ना बनाना है हमने। डो हमारी मिक्स हो रही है, चेक कर लें आप इसको। साथ साथ में अब और पानी लगाऊंगा, आपने भी चेक कर लेना है। डो को आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, सख्त नहीं होने देना, नरम होनी चाहिए डो। अच्छा दोस्तों, साथ साथ मैं इसमें पानी भी ऐड कर रहा हूँ, और डो हमारी तैयार भी हो रही है। मैंने वीडियो को स्टॉप नहीं किया ताकि आप ये ना समझ लें कि इसमें अब आपने पता नहीं क्या कोई और चीज़ डाल दी है और आपकी डो इसलिए जल्दी तैयार होगी, हमारी नहीं। साथ साथ पानी भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसका। दोस्तों चेक कर लें, डो हमारी तकरीबन तकरीबन जो है ना तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बन चुकी है। अब इसको बाहर मैं टेबल पे निकालता हूँ, और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अच्छा जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है। चेक करें ये डो, चेक करें कितनी नरम, और चेक कर रही है, सख्त नहीं है, नरम डो हमने बनाई है। अच्छा, लार्ज पिज़्ज़े के लिए हमें चाहिए होगा पेड़ा 400 ग्राम का। ठीक है, 400 ग्राम का आपने एक पेड़ा बना लेना है लार्ज पिज़्ज़े के लिए। और मीडियम के लिए 300 ग्राम का पेड़ा रोक देते। चलो, 300 ग्राम का जो पेड़ा हमने लिया है, ये मीडियम साइज का हमारे पास है पैन है उसके लिए, और जो 400 ग्राम का है वो लार्ज साइज का पैन है उसके लिए। मैं आपको पैन भी दिखा देता हूँ, ये चेक करें। ये हमारा लार्ज साइज का पैन है, और ये मीडियम साइज का। इसमें आपने 300 ग्राम लगानी है। अगर आपके पास इससे छोटा है तो तकरीबन 200 ग्राम का आपने जो है ना पेड़ा बना देना है। पेड़ा बना के मैं रख देता हूँ 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको मैं पैन में शिफ्ट करूँगा, तब तक मैं बाकी भी पेड़े बना लेता हूँ। अच्छा, डो हमारी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, ये बड़ी बाकी भी मैंने बना ली है। दो मैं आपको बना के चेक कर देता हूँ आपने कैसे पैन में लगाना है। पुष्कर इनको बहुत कम पुष्कर लगाना है आपने।
तरीके से बराबर करके ना आपने इसको रख देना है। इसके ऊपर मैं इसका कवर लगा रहा हूँ, कवर लगा के आपने रख देना है। ये आधे घंटे के लिए आपने जो है इसको रख देना है। ये दूसरी भी आप बना लेते हैं जो मीडियम साइज की। अच्छा, इसके नीचे मैंने ऑयल लगाया हुआ है। पैन को नीचे से आपने ना ऑयल लगा लेना है। किसी की भी चीज़ के साथ ग्रीस लाजमी कर लेना है, वरना पिज़्ज़ा आपका बाहर निकलेगा नहीं। ऑयल आपने नीचे लाजमी लगा लेना पैन के नीचे। इसको भी कर लिया मैंने, बना दिया ये। अब ये आधे घंटे के लिए रख दिए। आधे घंटे के बाद फिर आपके साथ मुलाकात होती है। अभी आपको मैं टिक्का बनाना सिखा देता हूँ कि टिक्का कैसे बनाना है। चिकन टिक्का, उसकी प्रॉपर रेसिपी और बाकी भी हम बना लेंगे। हमने ले लिया 3 किलो चिकन है, चेक कर लें। बॉलर चिकन है, ब्रेस्ट पीस और थाई जो है आप मिक्स काट सकते हैं, ब्रेस्ट का भी बना सकते हैं। 3 किलो चिकन है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे टिक्का मसाला। हम किलो वाला पूरा पैकेट लेकर आते हैं, आप दूसरे पैकेट भी ले सकते हैं 50 ग्राम वाले। 30 ग्राम इसमें हमने डालना है टिक्का मसाला। तकरीबन जो है ना 2.5 टेबल स्पून बने हैं। अच्छा, 20 ग्राम इसमें तंदूरी मसाला आपने डालना है। अगर आपके पास टिक्का है तो सिर्फ टिक्का इस्तेमाल कर लें 50 ग्राम। अगर तंदूरी है तो ठीक है, नहीं है तो सिर्फ टिक्का डाल लें। अगर तंदूरी है तो तंदूरी डाल लें। उसके बाद फ्रेश चिल्ली है, खड़ा मिर्च 15 ग्राम हमने ये डालनी है। ये लाल मिर्च पाउडर है 25 ग्राम, ये डालना है। ये 3 किलो टिक्के की रेसिपी आपके साथ जो है ना शेयर कर रहे हैं। ये आपने 25 ग्राम डालने हैं। अब आगे नमक की, तो नमक आपने डालना है इसमें, ये भी 25 ग्राम 3 किलो में। ये चेक कर लें, 25 ग्राम आपने इसमें नमक डालना है। नमक ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, ये परफेक्ट जो है ना आपके साथ। उसके बाद अब ये चिली सॉस 100 ग्राम ये डालनी है। की वालों की हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 ग्राम आपने इसमें चिली सॉस ऐड कर देनी है। 50 ग्राम सिरका, सिरका आपने 50 ग्राम डाल देना है। इसके साथ टेस्ट अच्छा बनता है टिक्के का। ऑयल इसके अंदर आपने नहीं डालना, ठीक है। ये टिक्के की रेसिपी है, इसको आप चिकन तंदूरी भी कह सकते हैं। काफ़ी लोगों ने रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा के नाम रखे होते हैं, चिकन तंदूरी, अंगार चिकन, हार्ट पाई, ये सब इसी चिकन की रेसिपी है। ये चिकन, इसको अब हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो डिश है, इस डिश में हमने जो है ना तो ओवन में लगाने के लिए डिश में डालेंगे। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जब तैयार होगा। दोस्तों, टिक्के को हमने मिक्स कर लिया सारे चिकन को। इसके नीचे, डिश के नीचे हल्का सा साइड लगा लेंगे, ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है। इसको डिश में फैला देते हैं। आप इसको किसी चीज़ में भी लगा सकते हैं, सांचे में लगा सकते हैं। आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप इसको किसी डिस्की वगैरह में भी पका सकते हैं। नॉन स्टिक अगर आपके पास कोई पैन है तो आप उसमें भी पका सकते हैं। उसके ऊपर आपने इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है, क्योंकि हम लगा रहे हैं ओवन में। इसको ऊपर से हल्का सा ऑयल आपने लगा देना, या ऑयल लगा देना तो या फिर पानी का छटा लगा देना, ताकि ये जले ना ऊपर से बटर पेपर। चेक करें, ये हमारा ओवन है। हीट जो है 280 ग्राम ऊपर और 280 नीचे होनी चाहिए। ऊपर नीचे हो जाती है। इसके अंदर आप टिक्का लगा देंगे हम।
टिक्का ला के इसके अंदर। अच्छा, अलार्म हमने इसका सेट कर देना। ये तकरीबन तैयार होगा 25 मिनट में ना। 25 मिनट इसको ओवन के अंदर लगेंगे। ये हमने लगा दिया, 25 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। टिक्का हमारा तैयार हो चुका है। अलार्म को हमने बंद कर दिया है। अब इसको स्टेन करेंगे हम टिक्के को। अच्छा, इसका कवर हमने हटा दिया है। फिर इसका पानी है वो स्टेनर में से गुजारेंगे। टिक्का हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको पिज़्ज़े में लगाएंगे। इसका पानी जो है फालतू सारा निकल जाएगा। इसको 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आधा घंटा हो गया। तो आपके सामने पिज़्ज़ा बना के चेक कराते हैं कि आपने कैसे बनाना है। पिज़्ज़ा चेक कर लेंगे। हमारी डो प्रूफ हो चुकी है। अच्छा, इसके हल्के से किनारे बनाने हैं। सबसे पहले आपने किनारों के आपने जो है ना कटिंग लाजमी करनी है। ये इस तरह किनारों की कटिंग आपने लाजमी करनी है ताकि किनारे फिर जलते नहीं हैं पिज़्ज़े के ना। इस तरीके से कांटे की मदद से हमने इसको थोड़ा सा कि एयर निकाल लेनी है। इसको 30 सेकंड के लिए अब हम ओवन में हल्का सा बेक करेंगे। 30 सेकंड फिर बहुत अच्छी डो बनेगी। कच्चा रहने का इसका कोई चांस नहीं रहेगा। डो हमारी प्रूफ हो चुकी है। हमने थोड़ी देर के इसको लगाया ओवन में। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस। इसको टमाटो सॉस कहते हैं। इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने नहीं बताया। आप चिली गार्लिक भी लगा सकते हैं या केचप लगा सकते हैं। अब टिक्का लगाएंगे जो हमने टिक्का बनाया था। इसमें तकरीबन 100 ग्राम चिकन जो है ना लगेगा। जो बड़ी बोटी हो आप उसको छोटा कर लें तोड़ के इस तरीके से। ये अच्छा, इसमें अब चाप ओनियन है। ये आप डाल भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी डालने तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये शिमला मिर्च है, ये भी हमने चॉप की हुई है। उसके ऊपर अब ये चीज़ हम डाल रहे हैं। हमारे पास क्रश हुई जो है ना, ये चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ और चेडर मिक्स है। मिक्स चीज़ इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। ब्लैक ओलिव ऊपर लगा रहे हैं। इसको अब हम ओवन में लगाएंगे। ये 7 मिनट में तकरीबन जो है ना हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। 7 मिनट के बाद हम आपको इसकी लुक दिखाएंगे। ये अच्छा दोस्तों, चेक करें, ये तकरीबन 4 मिनट हो गए इसको। अभी मज़ीद 2 मिनट और लगेंगे पिज़्ज़े को। 2 मिनट। अच्छा, ओवन की हीट चेक कर ले। 280 ऊपर वाली है और 280 नीचे वाली है। पिज़्ज़ा हमारा पूरे 7 मिनट में तैयार हो चुका है। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसका जो है ना कलर आ चुका है चीज़ का। ये चेक कर ले आप। अच्छा, आपने इसके किनारों पे जो है ऑयल लगा लेना है ब्रश के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, ताकि किनारे से खुश्क नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। पिज़्ज़े को निकाल लेना है। ये चेक कर।
अब इसके मैं स्लाइस करूँगा 6 स्लाइस। ये चेक करें, माशाल्लाह चेक करें ये कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है। ये देखें, इसकी लेयर भी है, हल्का सा क्रिस्पी भी है और नरम नरम भी है डो। चेक करें, ये इसकी लेयर चेक करें। हल्की सी इसके ऊपर ओरिगेनो डालें। पिज़्ज़ा हमारा हो चुका है तैयार। अच्छा, मज़ीद आप पिज़्ज़े की कोई और रेसिपी के मतलब भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके साथ पिज़्ज़े की तमाम जो है रेसिपी शेयर करेंगे कि आपने हवाइन पिज़्ज़ा कैसे बनाना है, फजीता पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। ये तो एक टिक्के पिज़्ज़े की आपने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। उसके बाद पिज़्ज़े के जो किनारे होते हैं ना, ये साइड वाले, इनके डिज़ाइन भी बनाने आपको सिखाएंगे। आपको क्रोन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा भी बताएंगे और स्टफ़ क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा भी बताएंगे कि आपने स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। उसमें मायोनीज़ डालनी होती है या कबाब या चिकन या चीज़ स्टफ़ करनी होती है, उसके भी रेसिपी बताएंगे। मज़ीद जो भी पिज़्ज़े की रेसिपी है सब आस्ता आस्ता हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।